ये जो बांकीपुर का इलेक्शन, इसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो प्रशांत किशोर ने बिहार के जो भी चीफ मिनिस्टर हैं उनके खिलाफ भी काफी बातें की। दूसरे राज्यों में भी इसका असर होगा और संभव है कि सम्राट चौधरी के खिलाफ जो एक हवा पार्टी के अंदर भी बन रही थी। নমস্কার, সবাইকে এই খোলা একটা অনুষ্ঠানে স্বাগত। আমি সুব্রত বসু। আজকের এই অনুষ্ঠানটা আমরা একটা বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে করছি। সেটা হচ্ছে যে আপনারা জেনেছেন এর মধ্যে যে ভারতের তিনটে রাজ্যে আজকে উপনির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হয়েছে। বিধানসভা নির্বাচন তাদের রাজ্যের, তার উপনির্বাচন। তাই বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল না, কিন্তু তিনটে রাজ্য মানে গুজরাতে, মধ্যপ্রদেশে এবং বিহারে, এই তিনটি রাজ্যেই বিজেপি শাসন রয়েছে এবং সাধারণভাবে বিজেপি বা অন্য দল যখন সে কোনো রাজ্যে শাসন করে উপনির্বাচনের ফলাফল সেদিকেই যায়। কিন্তু এই তিনটি নির্বাচনে আমরা দেখছি দুটো বিজেপি শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছে। তার মধ্যে একটি মধ্যপ্রদেশ এবং একটি বিহার, দুটি হিন্দি ভাষী রাজ্য, এবং দুটোতেই বিজেপি শাসনে রয়েছে। কিন্তু সব থেকে চমকে দেওয়ার মতো ফলাফল এসেছে আহ, বিহারের বাঁকিপুর থেকে। বাঁকিপুর, আপনারা অনেকেই জানেন যে বাঁকিপুর হচ্ছে পাটনা শহরেরই একটা অংশ, এবং বাঁকিপুরের আরেকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে, সেটা হচ্ছে বাঁকিপুরে আমাদের খুব বরেণ্য মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবাংলার বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মস্থান, এবং তিনি সেখানে ছোটবেলাটাও কাটিয়েছেন। তো বাঁকিপুরের সঙ্গে আমাদের পশ্চিমবাংলার খুব একটা দৃঢ় যোগাযোগও রয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক গুরুত্ব হচ্ছে বাঁকিপুরে গত প্রায় 31 বছর ধরে কখনো বিজেপি হারেনি। আহ, এবং শেষ যে বিজেপি নির্বাচনে জিতেছিল এখানে মাত্র 10 মাস আগে, সেখানে জিতেছিলেন বিজেপির বর্তমান যিনি এখন বিজেপির বস, মানে মোদিরও যিনি, মোদি যাকে বস বলেন, সেই নীতিন নবীন বিজেপির সভাপতি। তিনি নীতিন নবীন ওখান থেকে জয়ী হয়েছিলেন বিধানসভা নির্বাচনে, এবং পরবর্তীকালে তিনি দিল্লির রাজনীতিতে চলে যান এবং রাজ্যসভার সদস্য হন বলে এই সিটটি খালি হয়েছিল। তো বিজেপি এখানে চিরকাল আহ, তাদের গড় বলা হতো, এবং এখানে বিজেপি কখনো কিন্তু পরাজয়ের মুখ দেখেনি গত 3 দশকের মধ্যে। নীতিন নবীনের আগে তার বাবা এখান থেকে নির্বাচনে জিততেন। অতএব এটা একটা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বিজেপির সিট তার কাছে এসেছিল। এই নীতিন নবীন চলে যাওয়ার পরে এবার যিনি নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন তিনি এবার আহ, মাত্র 30% পাননি, কিন্তু তিনি যার কাছে পরাজিত হয়েছেন তিনি রাজনীতিতে খুব একটা পরিণত বা অভিজ্ঞ কেউ নন। স্ট্র্যাটেজিস্ট হিসেবে কাজ করেছেন, কিন্তু রাজনীতির এই প্রথম তিনি ভোটে দাঁড়ালেন। তার নাম প্রশান্ত কিশোর, তিনি এই প্রথম ভোটে দাঁড়িয়েছেন জনসুরাজ পার্টির হয়ে। আহ, তিনি যে ভোট পেয়েছেন সেটা অস্বাভাবিক। এবং বিরোধী দল, যেটা বিহারের বিরোধী দল, প্রধান বিরোধী দল আরজেডিও এবার তৃতীয় স্থানে চলে গেছে। তো রাজনীতিতে এর গুরুত্ব কি, আমরা এই বিষয়টি আজকে জানবো বিহারের প্রথিতযশা সাংবাদিক পুষ্পরাজজির কাছ থেকে। পুষ্পরাজজি সম্পর্কে আমি একটুখানি বলে রাখি। পুষ্পরাজজি নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সময়ও পশ্চিমবাংলা কভার করেছেন, তার বিখ্যাত বই আছে নন্দীগ্রামের উপরে, নন্দীগ্রাম নামে। তো পুষ্পরাজজি আমাদের খুবই সেই অর্থে খুবই কাছের। তিনি হিন্দিতেই বলবেন, তবে আমার মনে হয় যে আপনারা যারা বাংলাভাষী দর্শক তারা খুবই তার হিন্দি বুঝতে পারবেন। আমি হিন্দি ভাষী না হয়েও তার হিন্দি বুঝতে পারি। অতএব पुष्पराज जी के আজকের এই অনুষ্ঠানে স্বাগত। पुष्पराज जी, आपको स्वागत है इस प्रोग्राम में, कार्यक्रम में। आप आपसे आपको ये पहले जानना है, जो ये जो बांकीपुर का इलेक्शन, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, पुष्पराज जी? देखिए सुब्रत दा, पहले तो हम आपके बांग्ला के ऑडियंस को आमार तुम्हार सोनार बांग्ला को मैं नमस्कार करता हूँ। हमार नमस्कार। और जो बंगाल का रिश्ता रहा है बांकीपुर से, हम पहले उसके बारे में बात करें कि बांकीपुर विधानसभा जो अभी नाम है, इसका नाम पहले पटना पश्चिम पश्चिम का, विधानसभा या था। राइट। पटना पश्चिम विधानसभा के अंदर ही बांकीपुर था, और 2008 में जो परिसीमन हुआ उसके बाद इसका नाम बांकीपुर हुआ। बट बांकीपुर एक हिस्टोरिकल प्लेस है। बांकीपुर पटना का एक हिस्टोरिकल प्लेस है, और ओल्ड हिस्टोरिकल पटना का प्लेस हिस्सा है, होने की मतलब वजह क्या पटना है? ओल्ड का हिस्सा है ये, पुराना पटना का। जी, पुराना पटना का एक बहुत ही हाँ। इम्पोर्टेंट हिस्सा है।
और इम्पोर्टेंट हिस्सा होने में इसका सबसे बड़ा यह है कि जो नया बिहार बना बंगाल से अलग होकर, उसका जो पूरा पॉलिटिक्स हुआ वह पटना का बांकीपुर में ही हुआ। जी और जो पटना जो बिहार इमर्ज किया, नया बिहार, उस बिहार को बनाने वाले बिहार निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा भी बांकीपुर में ही निवास करते थे। और बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भारत रत्न डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्म भी उसी बांकीपुर क्षेत्र में ही हुआ। जी इसलिए भी बंगाल की जनता को हम बताना चाहते हैं कि यह क्षेत्र बहुत ही हमारे बिहार की राजधानी का हृदय क्षेत्र रहा, ये बांकीपुर। और खास करके बांकीपुर में जो हमने देखा है, जब पटना में जब हम रहते थे, खास करके बहुत एजुकेटेड आदमी बांकीपुर में रहते हैं अभी जी भी। जी। जी, बांकीपुर सो का जो शिक्षित आदमी के लिए बांकीपुर प्रसिद्ध है। जी हम्म। जो टोटल लिटरेसी है पूरे बिहार का 70.90 है, लेकिन हाँ। बांकीपुर एरिया का राइट 83.73% है। राइट राइट तो राइट। पुराने समय से सुब्रत दा जो गुलाम भारत था, तो गुलाम भारत में अंग्रेजों ने बांकीपुर क्लब बनाया था। और बांकीपुर क्लब की स्थापना 1865 में जेम्स मैट्रिक जॉनस्टन के द्वारा की गई थी। जी और जो बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्होंने उसकी स्थापना की थी, जी फाउंडेशन किया था। जी तो जो बांकीपुर क्लब रहा, और बांकीपुर क्षेत्र में ही एक और देश का प्रसिद्ध स्थल है, वो है खुदाबख्श लाइब्रेरी। बहुत खुदाबख्श प्रसिद्ध। लाइब्रेरी, हाँ हाँ। हाँ, तो जी खुदाबख्श लाइब्रेरी जो इंडोलॉजी का बहुत ही, जैसे एशियाटिक सोसाइटी है आपका बंगाल में, नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता में। है, उस तरह से इम्पोर्टेंस रखता है बिहार में। जी तो खुदाबख्श लाइब्रेरी के जो फाउंडर थे जस्टिस खुदाबख्श साहब, वे भी बहुत ही बड़े विद्वान व्यक्ति थे। और 1865 में बांकीपुर क्लब की स्थापना हुई, और बांकीपुर क्लब की स्थापना के बाद इसकी स्थापना हुई 1891 में, 1891 में। 1891 में खुदाबख्श लाइब्रेरी की स्थापना सो हुई, जिसके 2 वर्ष बांकीपुर, सेक्रेटरी। वाई बांकीपुर इज सो पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट? ये जो चुनाव हुआ था, इसमें इसमें इसका जो जी नतीजा आया था, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, इसका इम्पोर्टेंस इसलिए है कि अभी बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं। जी और दिल्ली में जो अभी कुछ जंतर मंतर पर जो कुछ भी अभी हुआ, आपने देखा कि पेपर लीक के खिलाफ जो छात्रों का आंदोलन जी था, उस आंदोलन के बाद जो 20 तारीख को, 20 जुलाई को वहां पर संसद मार्च के ऊपर हमला हुआ, पूरे हम्म। देश में इसकी निंदा हो रही है, पैलेट गन, तरह तरह की चीजें हुई। उसके बाद जो बिहार में 21 जुलाई से स्पॉन्टेनियस मूवमेंट उभरा, लेफ्ट पटना पार्टियां में, उसको खास लीड करके कर पटना रही में, थी। सिवान में AK पटना से AK-47 का लेकर, गोली चला, और खास करके पटना में बहुत हाँ, बड़ा। सीवान में गोली चली, जी। गोली सीवान में चली। हम्म। जहानाबाद से लेकर बिहार के कई जिलों में 21 जुलाई से ही एक विप्लव शुरू हो गया स्पॉन्टेनियस छात्रों का। जी और उसमें उसको संभालना मुश्किल था, और गोली चली। जी। छात्रों ने कहीं भी अपनी तरफ से ऐसा वायलेंस नहीं किया था, लेकिन स्टेट वायलेंस बहुत ज्यादा हुआ, जिसमें AK इसका पहले 47 से भी गोली हुआ भी था, चली। मतलब एक जो दिल्ली का मूवमेंट का पहले भी बिहार में क्वेश्चन पेपर लीक लेके मूवमेंट हुआ था। देखिए, जी बिहार जो पेपर लीक का पूरा गिरोह है, उसका कनेक्शन बिहार से है। जी और पेपर लीक के आंदोलन के खिलाफ बिहार में जो लड़के आए, उसके वजह एक यह भी है कि जो पूरा गिरोह है वह स्टेट स्पॉन्सर्ड गिरोह है। जो पूरी राज्य सत्ता है, उसका कहीं ना कहीं से उससे कनेक्टिविटी है। जी इसलिए जब CBI ने 2024 में लोगों को अरेस्ट किया, तो ज्यादातर लोग रिहा हो गए। हम्म, जी। तो अभी खास करके दिल्ली में संजय जो मुखिया, छात्र आंदोलन जिसका हुआ, जिसको मुखिया माना जाता है, संजय संजीव मुखिया, जो मुखिया, संजय मुखिया। हाँ, जी संजीव मुखिया,
जी। ये सब नीतीश कुमार, लालू प्रसाद सबके बहुत ही क्लोज हैं। और नीतीश कुमार का जो गृह क्षेत्र है नालंदा, उस हम्म। नालंदा के गांव गांव से 20 बरस में इतने डॉक्टर निकले हैं, सब उसी माफिया गिरोह से निकले। घर घर में आपको डॉक्टर का नेम प्लेट मिलेगा। सही है। तो और ये सालों साल से हो रहा है, मतलब ये एकदम नया दो सालों चार साल से साल से हो रहा है यहाँ बिल्कुल बेरोक टोक हो रहा है, एक कल्चर बना हुआ है, एक कल्चर। कल्चर बना हुआ है। तो इसके तो खिलाफ बिहार का जो छात्र है वो बहुत दिन से उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। देखिए, बिहार के छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अभी जो दिल्ली का आंदोलन चल रहा था, जी। उस दिल्ली के आंदोलन में भी बिहार के छात्र थे। जी। और जो 20 तारीख को अटैक हुआ, उसमें एक तरफ बिहार में पटना में हजारों लड़के निकल गए और प्रदर्शन किया। डाक बंगला चौराहा आपने देखा कि बैरिकेड ही उठाकर लेकर जा रहे थे। जी। इस तरह की चीजें जो हो रही थी कि स्टेट को ऐसा लग रहा था कि वो पुलिस को पुलिस मानने के लिए तैयार नहीं थे। जी। और तो दिल्ली में वाटर हजारों कनन हजार के लड़के सामने दिल्ली भी डांस कर पहुंचे रहे थे थे। छात्र उस समय। ये छात्र है और वाटर बिल्कुल। कनन के सामने डांस तो कर रहे थे पुलिस। कह हाँ, रहे थे कि वोटर कैनन चलाओ, वोटर कैनन। चलाओ। और गर्मी तो थी ही, एक तो वोटर कैनन से हाँ। वो पूरा, हाँ, वाटर पार्क की तरह वो डांस कर रहे थे, जी। इंजॉय वाटर। कर रहे थे वाटर कैनन को। और वो कह रहे थे गोली चलाओ, गोली चलाओ। तो ऐसा लग जी। रहा था जैसे कोई शहीदी दस्ता निकल कर आ गया हो। और हम्म, इस तरह से लड़कों का एक ग्रुप निकल गया था। हजारों हजार लड़के दिल्ली भी गए थे, 40 हजार लड़के बिहार से दिल्ली भी गए थे। उनको रोकने की भी बहुत कोशिश हो रही इनका थी। कोई असर तो पड़ा ये इलेक्शन में? देखिए, बिल्कुल असर हुआ। इसलिए असर हुआ कि यहाँ चुनाव प्रचार शुरू हो चुका था, और लड़के पटना में जो कुछ कर रहे थे, उससे चुनाव पर असर हो रहा था। और आपने देखा कि जब 22 के बाद गिरफ्तारियां शुरू हुई, तो गिरफ्तारियां रात रात में पटना यूनिवर्सिटी के जो अध्यक्ष हैं, सभापति, उनको गिरफ्तार किया गया। वो एनएसयूआई से जुड़े थे, उनको अरेस्ट किया गया। और सबके घर रात रात में पुलिस जा रही थी। लड़कियों के घर 3 3 बहनें अरेस्ट हुई एसएफआई से जुड़ी। तो एक एक स्टूडेंट लीडर और उसमें जो शामिल थे लोग, लड़के, उनको सीसीटीवी से पहचान करके, मोबाइल से उनके रेंज को पहचान कर उनके घर पुलिस जा रही है, ऐसे जैसे वो डाकू रहे हों। तो इस तरह से जो गिरफ्तारियां बढ़ी, और दिल्ली में आपने देखा कि लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर के घर के सामने में धरने पर बैठे। हाउस में जो कुछ हंगामा होने लगा। तो बिहार में एक तरफ पटना में इलेक्शन हो रहा है, और एक तरफ री इलेक्शन की वजह पर असर, जो छात्रों का आंदोलन है उसका असर तो पड़ेगा ही। और मतलब छात्रों ये पर जो दमन ये हुआ, मेन कारण है जिसलिए बीजेपी का गढ़ टूट गया, ये मेन कारण है। देखिए, मेन कारण यह भी एक कारण बना है वोटरों को। अब जो पहले देख रहे जो हैं आप बताए, जो पोल। बांकीपुर एरिया है बहुत शिक्षित एरिया है। एडुकेशन बहुत मायने रखते हैं यहाँ। घर घर में जो आदमी जो हैं वो छात्र यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, नीट में बैठते हैं, यूजीसी में बैठते हैं। तो इसका कनेक्शन है कोई ये दोनों में? देखिए, जो पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, वह भी बांकीपुर के लोगों ने ही किया। जी। 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 आपको जी। बताया कि जी। बांकीपुर क्लब की स्थापना हुई। जी। जैसे बंगाल बहुत में एडुकेटेड आप, एरिया है, मैंने मतलब बिहार का बंगाल में जो सबसे भद्रलोक का एडुकेटेड एरिया में बता एक है बांकीपुर। जी, जो भद्रलोक आप बताते हैं, तो जी। बिहार विभाजन की जो पूरी बातचीत शुरू हुई, वह भी बांकीपुर क्लब से शुरू हुई। सही और है। सच्चिदानंद सिन्हा से लेकर बिहार हेराल्ड अखबार, जो बंगाली ग्रुप निकालते थे, तो बंगाली मुस्लिम रईस और कायस्थ परिवारों का जो सबसे पहला शिक्षित घराना था। तो ये सब जी। सबके सब रसूख वाले रईस लोग इसी बांकीपुर में रहते और थे। बांकीपुर में कायस्थ का संख्या जो है सबसे जी। बिहार में सबसे ज्यादा बांकीपुर में है। जी। शायद शत्रुघ्न सिन्हा देखिए, भी उस एरिया से आते हैं। जी, शत्रुघ्न सिन्हा भी उसी एरिया से आते हैं। जी। लेकिन सबसे बड़ी पहचान सच्चिदानंद सिन्हा, बिहार निर्माता डॉक्टर जी। सच्चिदानंद जी। सिन्हा की जी। वजह जी। से हुई। और जी। उसी इलाके में काशी प्रसाद जायसवाल,
जो महान इतिहासकार हुए, उनका भी निवास था। मतलब तो एक चीज बड़ी है पुष्पराज जी, हम हमको इंटरेक्ट करते हैं बांकीपुर में। हमको जब जब जहां तक पता है, बांकीपुर में 40% आबादी जो है वो अपर कास्ट का है और शिक्षित है, एजुकेटेड है, 40% का ऊपर। देखिए, मैंने आपसे बताया कि वहाँ लिटरेसी 83% से ज्यादा हम है। बोल रहे हैं उसमें और उसमें अगर जातिगत जो वहां पे आंकड़ा है, वहां पे अपर कास्ट जो है, सो कॉल्ड अपर कास्ट, सो कॉल्ड अपर कास्ट 40% का ऊपर है। सावन जिसको देखिए, कहते हैं उसमें बिहार में। अगर आप अपर कास्ट की बात आप कर रहे हैं, तो सो कॉल्ड अपर कास्ट में जो मुस्लिम है, मुस्लिम में भी रसूख वाले मुस्लिम है। सही है, सही है। मुस्लिम में भी दो प्रकार के मुस्लिम होते हैं। तो पसमानदा नहीं है, ज्यादातर स्पंदन है, रसूख वाले हैं। रसूख है। रई मतलब दे आर हाईली रियाइस वाले। एजुकेटेड, दे आर तो हाईली इसकी एजुकेटेड। वजह से, हाँ, इस तरह से जो पटना का जो ओल्ड बांकीपुर क्लब के बाद जो खुदाबख्श लाइब्रेरी की स्थापना हुई, आपको हमने बताया कि सच्चिदानंद सिन्हा के मेंटर थे खुदाबख्श साहब। चाहिए। और खुदाबख्श अब जो है साहब, प्रशांत किशोर का नारा था शिक्षा का, जो परिवर्तन का नारा दिए थे प्रशांत किशोर, उसका मेन जो था वो शिक्षा। पुष्पराज जी, आप सुन रहे देखिए, हैं? प्रशांत किशोर बहुत सारी चीजों को तोड़ना चाहते हैं। जी। प्रशांत किशोर सच्चिदानंद सिन्हा की तरह हाईली एजुकेटेड नहीं है, लेकिन प्रशांत किशोर के पास जो चुनाव का अनुभव है, और जो बिहार के चुनाव में जिस तरह के कास्ट डोमिनेंस वाले और मसल्स पावर वाले लोग अभी डोमिनेंस कर रहे हैं, वैसे में प्रशांत किशोर के ऊपर इस तरह का कोई आरोप नहीं है। प्रशांत किशोर के बारे में एक उम्मीद लग रही है पूरे बिहार में। तो प्रशांत किशोर ने बिहार के जो भी चीफ मिनिस्टर हैं, उनके खिलाफ भी काफी बातें की। और सबसे पहले व्यक्ति हैं पॉलिटिशियन जो जिन्होंने सम्राट चौधरी के पूरे हिस्ट्री को उन्होंने सार्वजनिक किया, चैलेंज किया कि आपके ऊपर इस तरह के आरोप हैं, और कई हत्याओं के आपके ऊपर आरोप हैं। तो प्रशांत किशोर ने एक तरह से एक उम्मीद दी कि हम बेहतर कर सकते हैं, और जो पॉलिटिक्स यहाँ है, जो पॉलिटिशियन है, उनसे हम बेहतर कर सकते हैं। इसी सूरज उम्मीद जी, की वजह से एक बाकी चीज एक चीज हम जानना चाहते हैं, सब जो देख रहे थे वो भी उसका भी जानना चाह, ये सबसे बड़ा इंटरेस्ट है कि बिहार में हर इलेक्शन का बारे में ये कहा जाता है, हम भी देखे थे जब बिहार के इलेक्शन खास करके कास्ट लेके इलेक्शन का जो इक्वेशन कास्ट इक्वेशन होता है। तो इस बार क्या आपको लग रहा है बिहार का जो ये इलेक्शन, जो ये बाई इलेक्शन, ये कास्ट का ऊपर जा करके आदमी ने वोट डाला है? ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, कास्ट से खासकर जब हम बार बार पटना पश्चिम बांकीपुर जब हुआ, तो बांकीपुर की आइडेंटिटी थी, उसी आइडेंटिटी की वजह से उसको बांकीपुर विधानसभा नाम दिया गया। हम बांकीपुर की हिस्ट्री बार बार इसलिए बात करना चाह रहे हैं कि कभी बंगाली वहां पर डोमिनेंस नहीं करते थे। बंगाली, लाला और मुस्लिम पढ़े लिखे लोगों का एक दोस्ती, बहुत गुड रिलेशनशिप रहा। मतलब अगर बिहार अलग हुआ, तो बिहार को बेहतर बिहार बनाने में भी बंगालियों की भूमिका रही। और उसी इलाके से दो विधायक, सुनील मुखर्जी और डॉक्टर ए के सेन गरीबों के मसीहा डॉक्टर थे। जी जी जी। हम्म? हम्म, तो ए के सेन के चुनाव में वोट हुआ था, लेकिन कहा जाता है कि वो गरीबों ने उनको अपने कंधे पर उठा लिया था। रिक्शा चालक उनके बाहर खड़े रहते थे, हम्म। पूछते थे सबका इलाज हो गया, कहते थे नहीं, हम आपको देखने आए। डांटने डांटते थे, क्यों देखने आए हो? तो डॉक्टर ए के सेन जैसे डॉक्टर, डॉक्टर पी सुंदु गुप्ता जो पी गुप्ता के नाम से मशहूर थे, ये सब जो कल्चरली रिच लोग थे बंगाली, वो भी उसी एक इलाके में थे। क्वेश्चन है पुष्पराज जी, एक क्वेश्चन है, मतलब ये आदमी सब शिक्षित आदमी है, ये लोग एजुकेटेड है, मगर फिर भी बांकीपुर से पिछले 30 साल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 31 साल से बीजेपी वहां से लगातार जय हासिल कर रहे थे। तो ये जो है इस बार क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ इस बार इसका ये परिवर्तन हो गया? देखिए,
आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि अभी क्यों परिवर्तन हुआ। देखिए 85 से पहले तक वहाँ लगातार उस क्षेत्र के लोग ही बिहार और देश को रिप्रेजेंट करते रहे। बांकीपुर क्षेत्र के से चुने हुए दो विधायक बिहार के मुख्यमंत्री बने। एक केबी सहाय चौथे मुख्यमंत्री, और पांचवें मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद। और दोनों अपने वोट, अपने जात के वोट से नहीं जीते थे। सबने वोट दिया, बंगालियों ने भी वोट दिया, मुसलमानों ने भी वोट दिया। तो वो चीज अभी उस इलाके के वोटरों को प्रशांत किशोर के साथ ऐसा दिखा कि ये आइडेंटिटी, प्रशांत किशोर की जो आइडेंटिटी है, अगर हम इसको वोट देते हैं तो यह एक नूतन बिहार, एक सुंदर बिहार बना सकता है। उनके मतलब आप समझिए कि बांकीपुर क्षेत्र के वोटरों ने सिर्फ बांकीपुर के लिए वोट नहीं दिया है। वो समझ रहे हैं कि ये बंदा प्रशांत किशोर पूरे बिहार को बेहतर बिहार, नूतन बिहार बनाने का एक सपना देखता है। तो इसको वोट दो। तो राजधानी का तो हृदय क्षेत्र है ही बांकीपुर। तो बांकीपुर अब फिर प्रशांत के साथ वह चीज देख रहा है कि, और कास्ट का जो पूरे बिहार में कास्ट का जो कोलोब्रेशन है, वो कास्ट कोलोब्रेशन टूटा है प्रशांत के साथ, यह अ, मानना पुष्प- पड़ेगा आपको। पुष्पराज जी, ये जो बांकीपुर इलेक्शन का जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट का जी क्या असर पड़ेगा बिहार का पॉलिटिक्स में? मतलब आने वाला चुनाव में क्या हर आदमी ऐसे ही सोचेंगे? जो बांकीपुर का आदमी जो सोचा था इस बार, ऐसे ही सोचेंगे पूरा बिहार का जो आदमी है? आपको तो देखिए गांव अभी गांव से तो, रिश्ता है, आप थोड़ा सा जी हमको जानकारी दीजिए इसका बारे में। देखिए अभी पटना में, बिहार की राजधानी में हवा गर्म होगी। और अभी आप देख रहे हैं कि जो हमारा बिहार का लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो हम्म। पूरा हाउस चलता रहा, वो विदेश में थे। लालू प्रसाद जी के पुत्र तेजस्वी यादव ये यूसी। विधान, जी। तो उनका बहुत ही डाउनफॉल हो रहा है। और चुनाव में भी उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही थी, आपने देखा था असेंबली इलेक्शन में। जी। और लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में भी काम नहीं कर पा रहे हैं। जो भी उनका प्रॉब्लम हो, तो मतलब फैमिली एक प्रॉब्लम वैकुअम हो, वैकुअम हुआ बिहार में। जी बिल्कुल एक वैक्यूम हुआ है। और उसको ऐसा लग रहा है कि लीडर ऑफ अपोजिशन ने जो एक जगह खाली कर दी है, उस जगह को प्रशांत किशोर, एक सीट पहले से भी इनको एमएलसी का एक सीट है इनके पास, एक सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से अफाक अहमद इन्हीं के जनसुराज के एमएलसी हैं। हम्म। तो लेकिन प्रशांत किशोर के हाउस में जाने से पूरी दशा दिशा बदलेगी हाउस की। और अगर प्रशांत किशोर जो कुछ अभी तक बोल रहे थे, जो आकांक्षा लोगों में जगा रहे थे, ठीक है, हम और आप सब जानते हैं कि प्रशांत किशोर आइडियोलॉजिकली कम्युनिस्ट नहीं है, सोशलिस्ट भी नहीं है। लेकिन अगर प्रशांत किशोर एक ह्यूमनिस्ट की तरह भी, एक डेमोक्रेटिक राइट्स की भी बात जो करते रहे, उसकी तरफ भी अगर आगे बढ़ते हैं, तो स्टूडेंट्स, अभी बीपीएससी स्टूडेंट्स के लिए इन्होंने मूवमेंट किया था पिछले जी साल, जी जी। अनशन किया था। तो एक उम्मीद लग रही है यंग जनरेशन में। हमारी जानकारी है कि लड़के जो जेल से आए हैं, सैकड़ों लड़के, वे भी ऑफ द रिकॉर्ड उनके लिए काम कर रहे थे, वो किसी पार्टी में हो, ऑफ द रिकॉर्ड उनके लिए काम कर रहे थे। उनको यह लग रहा था कि हमको जो पुलिस ने टॉर्चर किया है, जेल भेजा है, इसकी इसको कंपलसेट करेंगे एक एक वोट से। तो सही वो है। दूसरे क्षेत्र के वोट नहीं दे पाए। वोट का परसेंटेज 34% ही रहा। लेकिन प्रशांत किशोर ने एक आकांक्षा, एक ड्रीम पैदा किया है। और ऐसा लग रहा है कि जरूर बिहार के इस बांकीपुर के रिजल्ट का असर राजधानी के पूरी राजनीति में, सोच समझ में, बदलाव में उसका असर होगा। सूरज जी, मेरा समय तो खत्म हो रहा है। लास्ट जो क्वेश्चन है मेरा, जो अब बिहार का, इसका जो बिहार में जो इसका प्रभाव होगा वो आप बताएं। पूरा देश में कोई प्रभाव होगा इसका? खास करके जो हिंदी बेल्ट में, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इस बार सामने उत्तर प्रदेश का चुनाव है, बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन सामने है। तो आपको लग रहा है इसका कोई प्रभाव होगा देश में? खूब संक्षेप से बताइए, आपको टाइम एकदम खत्म हो गया। देखिए
हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक मैसेज तो जाएगा। अब प्रशांत किशोर खुद, इनकी पॉलिटिक्स अभी तो ये बिहार कंसंट्रेट कर रहे हैं, बिहार में ही। और एक तरफ दूसरे दलों के लिए ये आपको पता ही है कि एक इलेक्शन कैंपेन का काम करते हैं। तो अभी जो उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, जैसे कॉकरोच जनता पार्टी का असर और छात्र आंदोलन का असर पूरे भारत में भी हो रहा है, तो दूसरे राज्यों में भी इसका असर होगा। और संभव है कि सम्राट चौधरी के खिलाफ जो एक हवा पार्टी के अंदर भी बन रही थी कि ये नीतीश कुमार के चॉइस से सीएम बनाए गए हैं फोर्सली, तो संभव है कि सम्राट चौधरी को हटाने में भी यह बांकीपुर का जनमत काम करे। और दूसरे राज्यों के चुनाव पर भी प्रशांत किशोर के इस जनमत का असर होगा। और मतलब भाजपा ये के बता रहा है लिए, जो, हाँ, भाजपा के लिए, बीजेपी के लिए एक आत्म आत्म मंथन का दरकार भी है इस समय। जो आत्मंथन तो कि है ही। हम्म, जी, हम्म, आत्मंथन ही नहीं है। अभी अभी डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का भी बयान आ रहा था। वे भी कह रहे थे कि पार्टी समीक्षा करेगी। लेकिन यह बात पूरी तरह से आ रहा है कि भाजपा अपने गाल पर तमाचा भी लगाएगी। यह सही। बांकीपुर का चुनाव जो है भाजपा के गाल पर तमाचा है। थैंक यू पुष्पराज जी, आप বহুত अच्छे हम लोग को बहुत जानकारी দিয়ে हैं বিহার से। আপনারা যারা এই অনুষ্ঠানটা দেখলেন আজকে, পুষ্পরাজ জি সরাসরি বিহার থেকে, সব থেকে আমাদের কাছে যে আমরা সমৃদ্ধ হলাম, যে বাঁকিপুর সম্পর্কে আমরা জানলাম, যে বাঁকিপুরের ইতিহাস কি এবং বাঁকিপুর কেন অন্য সমস্ত বিধানসভা কেন্দ্র থেকে আলাদা, এবং তার কি প্রভাব, এই উপনির্বাচনের কি প্রভাব বিহারে এবং গোটা দেশে পড়তে চলেছে বলে সাংবাদিকরা মনে করছেন বিহারের, সেটা পুষ্পরাজি আমাদের সামনে পরিষ্কার করলেন। আপনারা যারা এই অনুষ্ঠানটা দেখলেন, সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। পুষ্পরাজি, आपको भी বহুত বহুত ধন্যবাদ। আর আপনাদের কাছে একটা नमस्कार। অনুরোধ, হ্যাঁ, যে আপনারা অবশ্যই नमस्कार। কমেন্ট বক্সে এই অনুষ্ঠানটা আপনাদের কেমন লাগলো, একটু ভাষাগত সমস্যা থাকলেও আমার কাছে কোনো উপায় ছিল না, কারণ বিহারের সম্পর্কে জানার জন্য আমার মনে হয় একজন বিহারের খুব অভিজ্ঞ, একজন এক অনুভবী পত্রকার আমাদের খুব দরকার ছিল। সেই জন্য আমরা পুষ্পরাজকে নিয়ে এলাম। আপনাদের কেমন লাগলো আপনারা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং নমস্কার। স্বাধীন সাংবাদিকতার পাশে দাঁড়াতে এবং আমার প্রতিটি ভিডিও সবার আগে পেতে মাসে মাত্র ৫৯ টাকা দিয়ে চ্যানেলের মেম্বারশিপ নিতে পারেন। চ্যানেলটি খুলে জয়েন শব্দটিতে ক্লিক করে যে কোনো দেশ থেকেই খুব সহজেই এ কাজ করা যায়। চ্যানেলটি ভালো না লাগলে সহজে মেম্বারশিপ ছেড়েও দিতে পারবেন। যারা এর মধ্যেই মেম্বারশিপ নিয়েছেন তাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনাদের জন্য আলাদা করে ভিডিও তৈরির কাজও খুব শীঘ্রই শুরু করা হবে।